اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ مصرع ثانی سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، اے جنت تو طواف کر میرا، اس لیے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جنت تو طواف کر میرا، اس لیے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت تو یوں کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سب میرے ساتھ میں پڑھیے، اعلیٰ حضرت کی شاعری سبحان اللہ، دعا بھی ہے دعا۔ اب سب عاشق اعلیٰ حضرت ہو اور عاشق مسرور ملت ہو، ماشاءاللہ کلیمی رنگ آپ پر چھایا ہوا ہے، سبحان اللہ، کلیمی رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اور کسی سید کا رنگ چڑھ جائے تو پھر اترتا تھوڑی ہے، سبحان اللہ۔ بولیے ذرا، بولیے، ماحول بنائیے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار کی دعا بھی ہے دعا، پڑھا کرو صبح و شام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب کو میرا دل بھی، کہیے میرے ساتھ، میرا دل بھی، دل کی گہرائیوں سے کہیے، مدینے کی طرف لو لگائیے، میرا دل بھی، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ لیکن پریشانی یہ ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھا دکھوں، اچھا دکھنے کی کوشش کرتا ہے، میرا چہرہ اچھا دکھے، ایسے نہیں دکھے گا تو فیشیل کروائے گا، میرے بال اچھے دکھیں، ڈائی کروائے گا۔ انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میری بلڈنگ اچھی دکھے، میرا لباس اچھا دکھے، میرا چال و چلن اچھا دکھے، میرا رہن سہن اچھا دکھے، میرا کھانا پینا اچھا دکھے، میں چلوں تو اچھا دکھوں، میرا طرز تکلم اچھا دکھے۔ لیکن انسان صرف اچھا دکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا دکھوں، اچھا دکھوں، اچھا دکھوں۔ میں تمہیں مثال دوں، ایک ڈبہ ہے، اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے پینٹ کیا، کلر کیا، اور اس کے اندر مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے، گندگی چڑھی ہوئی ہے، صرف باہر سے اچھا دکھتا ہے، اندر گندگی ہے، اندر میل ہے، اندر جالا ہے۔ تو یہی حال انسان کا ہے، چہرہ اچھا دکھ جائے، بال اچھے دکھ جائیں، آنکھیں اچھے دکھ جائیں، یہ چشمان غزالہ، یہ رخ رانا، یہ خوبصورت قد و قامت، میری بلڈنگ یہ ہے، میرا لباس یہ ہے، ریڈ چپ کے شوز ہیں، ریبوک کے پہنتا ہوں۔ اے مسلمان، میں تجھ سے کہتا ہوں، کاش تو جتنی کوشش اچھا دکھنے کی کرتا ہے، کاش تو کوشش یہ کر لے کہ میں اچھا بن جاؤں، تو اچھا بن بھی جائے گا اور اچھا پھر دکھ بھی جائے گا۔ اور پھر کہو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ جب بارش ہوتی ہے نا، بارش آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ صاحب یہ نمازی کا گھر اور یہ غیر نمازی کا گھر، یہ مسلم کا گھر، یہ نون مسلم کا گھر، تو آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ بارش نمازی کے گھر میں ہو رہی ہے اور غیر نمازی کے گھر میں نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ بارش ایک مومن کے گھر میں ہو رہی ہے اور غیر مومن کے گھر میں نہیں ہو رہی ہے۔ ورنہ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون بدکار ہے اور کوئی اچھا کام کرنے والا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کون نمازی ہے کون غیر نمازی ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت تو یوں کہتے ہیں، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے۔ میں نے کہا امام احمد رضا خان، کہ آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں جو آپ آنکھ مانگ رہے ہو، کہ آنکھ عطا کیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے۔ ذرا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ضیا کہتے ہیں روشنی کو، کیا اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی کیا؟ ارے روشنی کا عالم یہ تھا، بیٹھتے بریلی میں تھے دیکھتے مدینہ کا تھے۔ روشنی کا عالم یہ تھا، پھر بھی کہہ رہے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے۔
تو جواب میں نے کہا اے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا ان آنکھوں میں روشنی نہیں ہے؟ جواب ملا نادان قبر میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا؟ جواب ملا کتاب پر، ہسٹری پر۔ میں نے کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے جب میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں گیا، ایک کتاب مجھے ملی۔ میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو لیسن میرے سامنے آیا۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں نادان قبر میں نبی کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے نا مرنے کے بعد نبی کا دیدار ہوگا، بولیے بچل کے سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان ہے نا مرنے کے بعد قبر میں نبی کا دیدار ہوگا، اور جب نبی کا دیدار ہوگا تبھی تو امتی کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ اللہ۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں قبر میں ان آنکھوں سے نہیں پہچانا جائے گا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا پھر کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا؟ جواب ملا ان آنکھوں پہ تو مٹی پڑی ہوگی، ان آنکھوں کا تو کھوتا نکل چکا ہوگا۔ انسان بالوں میں بڑے کٹ نکالتا ہے، لیکن 3 دن کے اندر انسان کے سر کے بالوں کو نوچ لیا جاتا ہے۔ انسان کی ایک پسلی ادھر دوسری پسلی ادھر کر دی جاتی ہے۔ میں نے کہا کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا؟ تو پتا چلا علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا نادان قبر میں ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے گا۔ جس کا دل زندہ ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے، باپ مرنے کے قبر میں بھی زندہ ہے۔ اگر نبی کو دیکھنا چاہتے ہو اور نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو ضروری یہ ہے ان آنکھوں پہ توجہ مت دو۔ ارے کانا ہو چاہے آنکھوں سے نہ دکھتا ہو لیکن دل بیدار ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، دل ستھرا ہونا چاہیے۔ جس کا دل زندہ ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے، بعد مرنے کے قبر میں بھی زندہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے امیر حمزہ کا دل زندہ تھا، مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیا۔ ابو جہل کا دل مردہ تھا، جینے کے بعد بھی جینے نہیں دیا۔ ارے کربلا میں یزید کا دل مردہ تھا، وہ زندہ ہو کر بھی مر گیا۔ میرا حسین شہید ہو کے بھی زندہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، اولاد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت ایک شعر میں کہتے ہیں کل دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ یہ رات ہے کیا جسے شب معراج کہا جاتا ہے؟ یہ مومنوں کے لیے تحفہ ہے، یہ مومنوں کے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ اب میں آؤ قرآن کی تفسیر آپ کو بیان کرتا ہوا چلو، سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ آپ کے پریشان تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ انشاءاللہ وقت میں پورا کر لوں گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ اگر فجر تک سنو گے تو فجر تک سناؤں گا۔ ارے بڑے پریشان ہو رہے ہیں، فجر تک میں سناؤں گا نہیں، میں آپ سے زیادہ نیند کا ستایا ہوں۔ ہاں میں آپ سے زیادہ نیند کا ستایا ہوں۔ بہت جلدی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، بالکل بھی آپ کو احساس نہیں ہوگا، لیکن گزارش یہ ہے مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں سننا ہے، کمیٹی والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں سننا ہے، ان علماء کو خوش کرنے کے لیے نہیں سننا ہے، بلکہ الحب للہ والبغض للہ۔ اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے اس کی روشنی میں سننا۔ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، میں رکھا غیر سے کام، تمہیں جانا تمہیں مانا، میں رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحب للہ والبغض للہ۔ جینا ہے تو اللہ کے لیے، مرنا ہے تو اللہ کے لیے، جینا ہے تو رسول اللہ کے لیے، مرنا ہے تو رسول اللہ کے لیے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے وہ سنو۔ قرآن کہتا ہے اس رات کے تعلق سے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب سنیے اس کا شان نزول میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ اللہ، معراج جو جسمانی معراج مصطفیٰ کو ہوئی، جو 27ویں شب میں ہوئی، جو شب آج کی ہے، آج آپ اس شب میں جاگو گے، قسم خدا کی نبی کے جلسے میں آئے ہو، نبی کی محفل میں آئے ہو، اس مبارک رات میں آئے ہو۔ ان مبارک راتوں میں میرا رب آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو اولاد مانگے میں اس کو اولاد دو، کون ہے جو مال مانگے میں اس کو
संभाल दो, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश चाहे मैं उसकी गुनाहों को माफ कर दो। तो ये वो मुबारक रातें हैं जिसमें मुंह मांगी मुरादें पूरी होती है, जिसमें औलाद भी दी जाती है। तो सिर्फ नबी के जलसे में बैठे हो और शबे मेराज में बैठे हो तो दिल में तमन्नाएं लेकर बैठो, दिलों में आरज़ुएं लेकर बैठो। अगर किसी के पास बेटा नहीं है तो इस जलसे को वास्ता बनाकर, शबे मेराज को वास्ता बनाकर, मेरे मुस्तफा की जिस्मानी मेराज को वास्ता बनाकर अपने दिल में तमन्ना ये करे, ए मेरा रब मेरे पास औलादे नरीना नहीं है, मेरे पास बेटा नहीं है, तेरे नबी की मेराज का वास्ता, इस महफिल का वास्ता तुम मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो मेरा यकीन कहता है, मेरा ईमान कहता है और हदीस पाक भी कहती है इंशाअल्लाह इस रात के सदक़े उसे नेक साले औलाद मिलेगी। तो जो जिस मकसद से आप बैठे हो दिल में आरज़ू कीजिए, कुछ ना कुछ सोच लीजिए, कुछ ना कुछ अपने ज़हनों में अल्लाह के रसूल की बारगाह में लो लगा लीजिए। अब सुनो, अल्लाह अल्लाह, हिजरत से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया, आप सब जानते हैं, अल्लाह अल्लाह, जब तक मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत नहीं किया सारे मक्का वाले ये कहते थे मुस्तफ़ा अमीन है, मुस्तफ़ा सबसे बड़े सच्चे हैं, मुस्तफ़ा सबसे अच्छे हैं। जो मोहम्मद है ना, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, उसकी तरह कोई नहीं, वो हर सिफत में आला है। कोई डॉक्टरी में आला होता है, कोई इंजीनियरिंग में आला होता है, कोई साइंटिस्ट में आला होता है, कोई किसी सिफत में आला होता है, लेकिन मुस्तफ़ा दुनिया में एक ऐसे पर्सन है, मुस्तफ़ा दुनिया में तने तनहा वो एक ऐसी जात है जो हर सिफत में आला है। अरे डॉक्टरों में उनका जवाब नहीं, अतिप्पा में उनका जवाब नहीं, हुक्म में उनका जवाब नहीं, साइंटिस्टों में उनका जवाब नहीं। अरे जहां मुस्तफ़ा पहुंच गए वहां सारे साइंटिस्ट भी फेल हो जाते हैं। मुस्तफ़ा के सामने बड़े बड़े डॉक्टर अपनी पगड़ियों को नीचे रख देते हैं। मुस्तफ़ा की शान क्या है वो सुनो सुनो, अल्लाह अल्लाह, आज साइंस कितनी भी तरक्की कर दे, आज साइंस चाहे कहीं भी चला जाए, मेरे जहन में एक बात आ गई है, मुस्तफ़ा की शान में आपके सामने बयान करने लगा हो, मुस्तफ़ा का मकाम में आपके पास सामने बयान करने लगा हो। शबे मेराज के जलसे में आने वालों, आज के इस जलसे से पैगाम लेके जाओ। अल्लाह ने अपने हबीब को स्पेशल बनाया है, अल्लाह ने अपने हबीब को अनोखा बनाया है। मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, बड़े बड़े इस दुनिया में आए, बड़े बड़े अच्छे भी आए, हर सिफत वाले भी आए, अंबिया भी आए, रसूल भी आए, गौसो अब्दाल भी आए, औलिया भी आए, सालिहीन भी आए, लेकिन आमिना के लाल की तरह कोई नहीं आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह कोई नहीं आया, मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं आया। कैसे नहीं आया? सुनो सुनो, आज चाहे डॉक्टरी कितनी बुलंद पहुंच जाए, आज चाहे साइंस कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन कोई भी दुनिया की हिस्ट्री ये नहीं बता सकती, कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता सकता, कोई भी साइंसदान ये नहीं कह सकता कि किसी ने वक्त की सीमा को रोका हो, किसी ने वक्त को एक जगह रोक दिया हो। मसलन अब 11 बजे है तो 11 के 11 बजे रहे, वक्त न बढ़े, चाहे मैं रोकूं नहीं रुकेगा, चाहे ये रोके नहीं रोकेगा, चाहे तुम रोको वक्त नहीं रुक सकता है। वक्त किसी का मोहताज नहीं है, हम सब वक्त के मोहताज हैं। चाहे वो अमेरिका का साइंटिस्ट हो, चाहे वो किसी और मुल्क का साइंटिस्ट हो, चाहे वो किसी भी खित्ते का साइंटिस्ट हो, लेकिन दुनिया में एक ऐसा पर्सन मिलता है, दुनिया में एक ऐसी जात मिलती है जिसको आमिना का लाल कहा जाता है, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, जिसको आमिना का लाल कहा जाता है, वो मदीने वाला मुस्तफ़ा, जिसकी अजमत को सलाम, जिसके वकार को सलाम, जिसकी बुलंदी को सलाम, जिसकी रिफत को सलाम। अरे आमिना के लाल ने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा वक्त को भी रोक के दिखाया है, कई मरतबा वक्त को भी रोक के दिखाया है। और अल्लाह के रसूल ने सारी दुनिया के साइंटिस्टों को यह चैलेंज किया है, तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो लेकिन वक्त को नहीं रोक सकते हो। अगर वक्त को कोई रोकेगा तो वो आमिना का लाल रोकेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शबे मिराज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा से बड़ा कोई डॉक्टर भी नहीं। कैसे नहीं? वो सुनो, एक सिहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ गए तो तवज्जो चाहता हूँ, या रसूलल्लाह मेरी टांग टूट गई, हड्डी टूट गई, आपके जहांगीरपुर में या मुर्शिदाबाद या कोलकाता में कितने ही बड़ा डॉक्टर ऑपरेट होगा, उसके बाद में राड भी डल सकती है, कई महीने लग सकते हैं। या रसूलल्लाह हड्डी टूट गई, हड्डी। आमिना के लाल ने अपना लुआबे दहन लिया और टूटी हुई हड्डी पे लगा दिया। सुभान अल्लाह, चल के बोला जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शबे महराज के जलसे में आए हो ना नबी की शान सुनने के लिए, तो वो सुनो। अब वो सिहाबी ना पैर नहीं रखने, मुस्तफा ने फरमाया पैर तो रखो नीचे, रखा। अब वो सिहाबी चल चल के देख रहे हैं,
دوڑ دوڑ کے دیکھ رہے ہیں کہیں ہل تو نہیں رہی ہے، کہیں ہل تو نہیں رہی ہے، سبحان اللہ، کہیں ہل تو نہیں رہی ہے۔ اللہ صحابی کہتے ہیں اب تو اتنی مضبوط ہو گئی، اتنی مضبوط تو پہلے بھی نہیں تھی، سبحان اتنی اللہ، مضبوط ہو گئی، اتنی مضبوط تو پہلے بھی نہیں تھی۔ ابے یہ آمینہ کا لال ہے، اگر ٹوٹی ہڈی پہ لال دہن لگا دے سارے دنیا کے ڈاکٹر فیل ہو جائے، لیکن آمینہ کا لال اپنے تھوک سے ٹوٹی ہڈی کو آن بان میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کس کی اسپیشلٹی ہے؟ یہ آمینہ کے لال کی اسپیشلٹی ہے، یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ آمینہ کے لال کا خاصہ ہے۔ تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا رب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دینے والا ہے سچا۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ، وہ غزوہ خیبر، غزوہ خیبر کے موقع پر کئی دن ہو گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہم کل کو صبح کو علم اس کے ہاتھ میں دیں گے جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا والا جو جملہ اس پہ توجہ دے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کر سکتا ہوں، آپ یہ وعدہ کر سکتے ہو، آپ یہ اعلان کر سکتے ہو کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، آپ اللہ سے محبت کرتے ہو اسی لیے تو چہرے پہ داڑھی کو سجایا ہے، آپ اللہ سے محبت کرتے ہو اسی لیے تو جلسے میں آئے ہو، لیکن یہ پروف کہاں سے لاؤ گے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ ہم اللہ سے محبت کریں یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ اس سے محبت کرتا ہے یہ نہیں، یہ کہاں سے کہو گے؟ اس کی خبر آمینہ کا لال دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ، یہ غیب آمینہ کا لال بتائے گا، یہ غیب بتائے گا تو محمد رسول اللہ بتائیں گے، معراج کے دولہ بتائیں گے۔ آہا کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک وجہ اور دیکھو بھائی، میں آپ سے کہوں کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی ہے، تو یار جو میں نے سوچا ہے کیا پتہ صبح تک اس کا انتقال ہو جائے؟ ممکن ہے نا بھائی، موت پہ کس کا قبضہ؟ جی جی، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے۔ بھائی کیا پتہ میں پوری تقریر کر پاؤں یا نہیں کر پاؤں، موت جب آنی ہے، لیکن آمینہ کا لال کیا کہہ رہا ہے؟ کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے۔ آمینہ کا لال یہ بتا رہا ہے جسے میں جھنڈا دینے والا ہوں وہ کبھی بھی مر سکتا ہے لیکن آج کی رات نہیں مر سکتا۔ آہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیے بھائی بولیے۔ سبحان اللہ، وہ کبھی بھی مر سکتا ہے، اسے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات موت نہیں آ سکتی کیونکہ اس کی زندگی کی ضمانت آمینہ کے لال نے لے لی ہے۔ آہا سبحان اللہ، اور سنو ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں شجاعپور میں، سنو جو اللہ کے رسول کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی اللہ کی مشیت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو اسپیشل بنایا ہے، سب سے خاص بنایا ہے۔ اللہ اب صبح ہو گئی، اب ہر صحابی کے دل میں تمنا یہ تھی کہ مجھے جھنڈا مل جائے، مجھے جھنڈا مل جائے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کہ مجھے جھنڈا مل جائے، مجھے جھنڈا مل جائے۔ آپ کے ذہنوں میں ایک بات آ رہی ہوگی، ہر صحابی اس لیے تمنا کر رہا تھا، آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جس کو کل جھنڈا دیا جائے گا وہ فاتح کہلائے گا، وہ جیتنے والا کہلائے گا، مجاہد کہلائے گا۔ صحابہ کو فاتح اور مجاہد اور ناموری کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ محل نظر، محل استشہاد دوسرا والا جملہ تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو کل مصطفیٰ جی سے جھنڈا دیں گے، سرٹیفکیٹ بن جائے گا، سبحان اللہ، پروف ہو جائے گا، دلیل ہو جائے گی وہ ایسا انسان ہے کہ اس سے اللہ محبت کرتا تھا۔ اسی جملے نے ہر صحابی کے دل میں
میں یہ اشتیاق پیدا کر دیا کہ مجھے جھنڈا مل جائے، مجھے جھنڈا مل جائے، مجھے جھنڈا مل جائے۔ جیسے سورج صبح کا نمودار ہوا، مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو دیکھا، سب پہ نظر ماری، پھر ارشاد فرمایا این علی، ویئر از علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا یا رسول اللہ وہ علی تو بیمار ہے، وہ آشوب چشم کے بیمار ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا علی کو بلا کے لاؤ۔ ہو یہ سکتا تھا جب علی بیمار ہے تو مصطفیٰ پھر کسی اور کو جھنڈا دیتے، کیونکہ بیمار تو لیڈر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، بیمار تو رئیس بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لیکن یہ آمینہ کا لال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے جسے رئیس بنائے کون اسے جھکا سکتا ہے؟ یہ کسی کو بھی رئیس بنا دے۔ ان کی بارگاہ میں اگر غلام بلال آئے تو سارے عاشقوں کا امام بنا دیتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے یہ آمینہ کا لال بلندیوں پر اس کو بٹھا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت علی آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم ہو، بندہ ناچیز حاضر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں تو لیڈر بننا ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں فتح لکھی ہے۔ یا رسول اللہ میں تو آشوب چشم کا بیمار ہوں، میری تو آنکھوں میں پرابلم ہے، یا رسول اللہ میرے تو بس کی نہیں ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اچھا کیا فاتح بننا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اگر نظر ہو جائے تو کیوں نہیں، یا رسول اللہ اگر کرم ہو جائے تو کیوں نہیں۔ میں نے دیکھا یا رسول اللہ جب آپ راستوں سے گزرتے ہیں تو آپ پر پتھر سلام پڑتے ہیں، میں نے دیکھا یا رسول اللہ جب آپ پیڑ کی طرف اشارہ کرتے تو پیڑ بھی آپ کی بارگاہ میں چل کے آتا ہے، میں نے دیکھا رسول اللہ اگر ابو جہل آپ کی بارگاہ میں آ جائے پر مٹھی میں کنکری لے کر آئے، کب سے میں ابو جہل کے ہے لیکن کنکریاں کلمہ آپ کا پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، میں نے دیکھا یا رسول اللہ 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 میں نے سنا ہے جب آپ پالنے میں ہوتے تھے تو آسمان کا چاند آپ کے اشاروں پہ کھیلتا تھا، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا جو آپ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے مقام صحبہ میں سورج ڈوب گیا تھا لیکن علی کے لیے آپ نے واپس کر دیا تھا، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کے چاند کے تو ٹکڑے آپ نے کیے ہیں، آپ مختار ہیں، اللہ نے آپ کو مختار بنا کر بھیجا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لیا، اور لعاب دہن لینے کے بعد میں حضرت علی کی دبلی آنکھ میں لگا دیا، اللہ اللہ حضرت علی سے فرمایا مصطفیٰ نے اب دیکھو، حضرت علی کہہ رہے ہیں میں میری آنکھوں میں مصطفیٰ کا لعاب دہن لگانا تھا، قسم خدا کی میرے نظر کا کمال یہ ہو گیا جب تک مصطفیٰ نے لعاب دہن نہیں لگایا تھا صرف سامنے کا دیکھتا تھا، اب میری نظر کا کمال یہ ہو گیا میں سامنے کا نہیں پیچھے کا بھی دیکھ رہا ہوں، میں زمین کا نہیں بلکہ زمین کے نیچے کا بھی دیکھ رہا ہوں، دادو سوا تک دیکھ رہا ہوں، ایسے معلّہ تک دیکھ رہا ہوں، یہ آمینہ کا لال ہے، اگر لعاب دہن لگا دے مولا کائنات کہتے ہیں اب تو نظر اتنی اچھی ہو گئی، اتنی اچھی تو پہلے بھی نہیں تھی، کون دیتا ہے دینے کو، وہ چاہیے دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، معجزہ مصطفیٰ، معجزہ مصطفیٰ، جشن شب معراج، نعرہ تکبیر، نعرہ یہ آمینہ رسالت۔ کا لال ہے، مصطفیٰ کو سب اسپیشل مانتے تھے لیکن جیسے ہی مصطفیٰ نے اعلان کیا انا نبی اللہ واللہ احد، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کافروں میں زلزلہ پیدا ہو گیا، ان آتنکوادیوں میں انقلاب پیدا ہو گیا، جو جتنا بڑا کفر میں ہوگا وہ اتنی بڑا آتنکوادی ہوگا۔ اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے، بے شک، اسلام تو بھائی چارگی کا پاٹھ پڑھاتا ہے، بے شک، حق۔ اسلام کبھی آتنکواد نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، آپ نے سنا آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ جب نماز پڑھتے ہیں نماز معراج کی ضرورت کیوں آئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا ابو جہل اور کے ساتھ کچھ لوگوں نے جب مصطفیٰ سجدے میں گئے انہوں نے اونٹ کی اوجڑی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد مصطفیٰ کی پیٹھ پہ رکھ دی۔ آہ سبحان اللہ، سبحان یہ لوگوں آج تم نماز کو اتنا ہلکا سمجھتے ہو، آج تم نماز کو ترک کر دیتے ہو، نماز کی اہمیت جانو۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ سجدے میں ہے اور سجدے میں کیا اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے جلووں کا دیدار کر رہے ہیں، اور یہ بدبخت دائمی نالائق مصطفیٰ جیسے سجدے میں گئے نا، نماز اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہے نا، نماز میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور سجدہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ انسان کی جو ناک ہے نا، ناک، اس ناک کے چکر میں انسان کچھ بھی کر لیتا ہے،
नाक नहीं झुकेगी, नाक छोटी नहीं होगी, चाहे कुछ भी कर दूंगा, पैसे में आग लगा दूंगा। इंसान के नज़दीक इस नाक की बड़ी कीमत होती है, कीमत। लेकिन अल्लाह को सजदा इसलिए पसंद है, अल्लाह फ़ख्र फरमाता है, मेरे फरिश्तों देखो, जो बंदा अपनी नाक को इतनी अजीम समझता है कि इस नाक के चक्कर में लाखों लाखों में आग लगा देता, वही बंदा मेरी बारगाह में अपनी नाक रगड़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह को सजदा बहुत पसंद है, हर मोमिन का सजदा। लेकिन आमिना के लाल का सजदा अल्लाह को कितना पसंद होगा? सुभान अल्लाह। हजरत अली सजदा करें तो अल्लाह के जलवों का दीदार करें, और आमिना का लाल सजदा करे तो उनके इस्तिग़राक़ का और मुशाहदे का क्या आलम होगा। इन सालिमों ने ऊंट की ओजड़ी लाए और मुस्तफ़ा के पीठ पे रखी। अल्लाह, क्या खता थी आमिना के लाल की? कौन सा गुनाह किया था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? शबे महराज में जागने वालों, सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अपने दिल के कानों से सुनो और समझने की कोशिश करो। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी सी थी, छोटी सी। उन्होंने हुजरे से देखा, मेरे बाबा जान की पीठ पे इन जालिमों ने ओझड़ी डाली है। हज़रत फातिमा ज़हरा अपने नन्हे नन्हे कदमों से तशरीफ़ लाई, आगे बढ़ी और अपने नन्हे नन्हे पाकीज़ा हाथों से उस ओझड़ी को मुस्तफ़ा की पीठ से उठाया और उसको दूर फेंक दिया। अभी छोटी सी उम्र में है सय्यदा फातिमा खातून जन्नत, और हज़रत सय्यदा फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू हैं। अर्ज़ करती हैं, या अल्लाह, मेरे बाबा का ऐसा कौन सा गुनाह है, ये जालिम इतना जुल्म कर रहे हैं। सोशल बाइकाट कर दिया गया, रास्तों में चलते हैं तो कांटे बिछाते हैं। अल्लाह अकबर, सही तरीके से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। इन जालिमों ने बड़ा मुश्किल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए ना, काबे के सामने तशरीफ़ लाए। ज़रा तवज्जो चाहता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। काबे के सामने तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाया, अर्ज़ की, अल्लाह, मेरी राहों में कांटे बिछाए जाएं, मुझे मंजूर है। ज़रा तवज्जो रखना। या अल्लाह, मुझे गाली दी जाए, मंजूर है। या अल्लाह, मुझे बुरा भला कहा जाए, मुझे मंजूर है। मेरा सोशल बाइकाट किया जाए, मुझे मंजूर है। या अल्लाह, मुझ पर जितने भी जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ उठाए जाए, मुझे मंजूर है। लेकिन जो तेरी इबादत में आड़े आएगा, जो तेरी मुलाकात में दीवार बनेगा, ये मुझे मंजूर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नमाज नहीं पढ़ूं, कुछ भी जुल्म करें, अल्लाह के रसूल की बात, अल्लाह के रसूल के ऊपर जब पत्थरों की बारिश की गई ना, तो फरिश्ता गया, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हुक्म तो पत्थरों की बारिश की जाए कि ये बिल्कुल मलियामट हो जाएंगे, इनकी नस्ल बर्बाद हो जाएंगी, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। फरिश्ते दर पे आने लगे तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया था, फरिश्तों में इनके लिए ज़हमत नहीं बल्कि रहमत बनकर आया हो। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज अल्लाह ने मेरे सर पर रखा है। आज ये मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन कल वो दिन दूर नहीं है कि इनकी औलादें मुझ पर कलमा पढ़ के अपनी जानों का नजराना पेश करती हुई नजर आएंगी। लेकिन आज अल्लाह के रसूल खाना काबा के सामने खड़े होकर रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला इनके खिलाफ दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मुझ पर जुल्म करें, बर्दाश्त है, या अल्लाह मुझे सताएं, ये बर्दाश्त है। लेकिन जो तेरी नमाज में आड़े आएगा, जो तेरी इबादत में आड़े आएगा, जो तेरे मुशाहदे में आड़े आएगा, जो तेरे दीदार में आड़े आ जाएगा, या अल्लाह ये बर्दाश्त नहीं, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने इनके लिए दुआए ज़रर फरमाई, इनके खिलाफ दुआ फरमाई, या अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे, फुला को हलाक कर दे, फुला को हलाक कर दे। आमिना के लाल ने आज अल्लाह अकबर कबीरा हमें ये पैगाम दिया है, ये लोगों, जब तुम्हारा जाती मामला हो, जब तुम्हारा आपस का झगड़ा हो, जब तुम्हारा भाई भाइयों का झगड़ा हो, मोमिनों का झगड़ा हो, तो
सुलह कर लेना, लेकिन अल्लाह अल्लाह जब ईमान पे बात आ जाए, जब रसूलुल्लाह की शान की बात आ जाए, जब अल्लाह के रसूल की तकदीस की बात आ जाए, जब नबूवत की बात आ जाए, जब रिसालत की बात आ जाए, या औलिया की शान की बात आ जाए, तो फिर सुलह नहीं करना। अगर तुम्हारे पर जुल्म हो तो बर्दाश्त कर लेना, माफ कर देना अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन जब अल्लाह का मसला हो, जब रसूलुल्लाह का मसला हो, तो ये अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया है, खाने काबा के सामने खड़े होकर, जहां मुस्तफा ने एक जगह इरशाद फरमाया था, मैं इनके लिए रहमत बनकर आया हूं, वही आज आमिना के लाल ने इनके खिलाफ दुआ के लिए हाथ उठा दिए हैं, दुआए ज़रर के लिए हाथ उठा दिए हैं। ये अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे। अब आमिना के लाल के ज़बान से जो कलिमात अबू जहल के खिलाफ निकले थे, उन्हें कौन टाल सकता था? अल्लाह अल्लाह, बदर बहुत जल्दी बर्पा हो गया। तुमने सुना होगा बदर के मैदान में अबू जहल भी चला गया, और तो छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ते हैं। एक की उम्र 11 साल की है, एक की उम्र 12 साल की है। ग़ज़वा बदर जो इस्लाम का सबसे पहला ग़ज़वा है, जो 17 रमज़ानुल मुबारक में जंग हुई थी। अल्लाह अल्लाह 313 मुसलमान हैं, हजारों की तादाद में काफिर है। मुसलमानों के पास हथियार नहीं है, मुसलमानों के पास पावर नहीं है, मुसलमान सत्ता में नहीं है। अल्लाह अल्लाह काफिर सत्ता में है, उनके पास हथियार भी है, उनके पास तलवारें भी है, उनके पास ज़िरा भी है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 313 मुसलमानों को देख के अपने रब की बारगाह में दुआ की थी, मौला मैंने एक एक दिन का करके ये एक आशियाना चुना है, ये घोंसला बनाया है। अगर आज ये उजड़ गया, अगर आज ये घोंसला उजड़ गया, कोई तुझे कयामत तक रब कहने आने वाला ना होगा, कोई तुझे खुदा कहने वाला ना होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला ना होगा। अल्लाह 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 की तरफ से हुक्म आया, ये मेरे हबीब परेशान ना होइए, ये मेरे हबीब परेशान ना होइए, आप कदम बढ़ाइए। अल्लाह की मुकद्दस फरिश्तों की जमात तुम्हारी मदद के लिए आएगी, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे मदद के लिए आएंगे। अल्लाह अल्लाह जंग चल रही है, तो छोटे छोटे बच्चे नन्ही नन्ही तलवारों को लेकर आते हैं। एक का नाम अल्लाह अल्लाह की उम्र 11 साल की है, एक की उम्र तकरीबन 13 साल की है। किसी सहाबी रसूल से उन बच्चों ने पूछा, ये बताओ अबू जहल कौन सा है? अल्लाह अल्लाह उन सहाबी रसूल ने बच्चों से कहा, ये बताओ तुम अबू जहल का क्या करोगे, तुम अबू जहल को क्यों पूछ रहे हो? तो बच्चों का ईमान देखिए, जिंदगी देखिए, जिंदगी होती क्या है। अल्लाह अल्लाह उन बच्चों ने कहा था, हमने सुना है अबू जहल हमारे नबी को गाली देता है, हमने सुना है अबू जहल हमारे नबी के खिलाफ वर्जी करता है। अल्लाह अल्लाह सहाबी ने फरमाया, हाँ हाँ करता तो है, लेकिन तुम क्या करोगे? उन बच्चों ने अपनी तलवार को बुलंद किया और करने के बाद में ये कहा था, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो नबी की तौहीन करे, उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है, उसे दुनिया में रहने का हक नहीं है। अल्लाह अल्लाह सहाबी रसूल ने फरमाया था, वो बच्चों अपनी जिंदगी को तो देखो, अपनी उम्र को तो देखो, अभी तो तुम्हारी उम्र खेलने की है, अभी तो तुम्हारी उम्र कूदने की है। अल्लाह अल्लाह उन बच्चों ने कहा था, उस जिंदगी का क्या फायदा जो नबी के काम ना आ सके, उन सांसों का क्या फायदा जो नबी की अल्लाह कबीरा, नबी की अज़मत की हिफाजत ना कर सके। अल्लाह अल्लाह उन बच्चों ने कहा था, क्या तुमने अपनी माँ से पूछ लिया है, क्या तुमने अपनी माँ से पूछ लिया है? आज की माँ अपने बच्चों को बुज़दिल बनाती है, अगर बच्चा नीचे गिर जाए अल्लाह अल्लाह उसे एक एक घंटा छुपाती है, मेरा लाल गिर गया है। और आज की माँ अपने बच्चों को बुज़दिल बनाती है, जब रोता है तो कहती है कुत्ता आ रहा है, बंदर आ रहा है, फला जानवर आ रहा है। पहले की माँ बच्चों को बुज़दिल नहीं बनाती थी, पहले की माँ बच्चों को शेर बनाती थी, शेर बहादुर बनाती थी। शुजापुर के जिंदा दिल मुसलमानों, आप बहादुर वाली बस्ती में बहादुर मुसलमानों हो, आप मेरी तकलीफ से पैगाम लेके जाओ, एक इनकलाब दुनिया में बर्पा करना है। अपने बच्चों को कभी बहादुर, कभी कभी बुज़दिल नहीं बनाना है, अपने बच्चों को कभी भी कमजोर नहीं बनाना है, अपने बच्चों को शेर बनाना है, शेर शेर बनाना है, शेर। लेकिन शेर अपनों के लिए नहीं बनाना है, क्योंकि फूला भाई ने ऐसे कह दिया उसकी गर्दन काट दे, उसने कह दिया कि उसके तपाचा मार दे, नहीं नहीं, बल्कि दीन के दुश्मनों के लिए शेर बनाना है, अल्लाह के रसूल की तकदीस के लिए शेर बनाना है। अल्लाह अल्लाह सहाबी रसूल ने कहा, क्या तुमने अपनी माँ से पूछ लिया है? बच्चों ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। अल्लाह अल्लाह बच्चे कहते हैं, हमारी माँ ने तो हमें तलवारें लेकर भेजा है, हमारी माँ ने तो हमें तैयार करके भेजा है। एक की उम्र 11 साल की है, एक की उम्र 13 साल की है, और 11-13 साल के बच्चे हमारे पूरी पूरी रात पबजी में निकाल देते हैं, पूरी पूरी रात गानों में निकाल देते हैं। हमारी माँ कभी उनसे नमाज को नहीं कहती, हमारी माँ कभी भी उन्हें दीन नहीं सिखाती, हमारी माँ कभी भी उनके अल्लाह पर हिफाजत नहीं करती, दीन की राह नहीं दिखाती। लेकिन नबी के दौर की माँ का जज्बा देखो, उनकी जज्बे को सलाम, उनकी अज़मत को सलाम, उनकी बहादुरी को सलाम।
कहा था, ए मेरे बच्चों सुनो सुनो, मैं बगैर औलाद के तो रह सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरे नबी को कोई गाली दे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई नबी की शान में तौहीन करे। अल्लाह अल्लाह, उन साहब ये रसूल ने कहा, देखो देखो वो अबू जहल है। अब बच्चों को निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। अबू जहल तो उनका लीडर है, उन तक कहां से पहुंचा जाए, कैसे पहुंचा जाए। अल्लाह अल्लाह, बच्चों ने ना सहाबी रसूल की टांगों को बाईपास बना लिया, टांगों के से बीच में से निकलना जाना शुरू कर दिया। किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई नहीं कहा जाएगा। उनका टारगेट है अबू जहल, उनका मिशन है अबू जहल, उनका अगर उनकी कोई मंजिल थी तो वो अबू जहल था। अल्लाह अल्लाह, उनको तो अबू जहल से मतलब था। अबू जहल के पास पहुंच गए। दूसरे भाई ने एक से कहा, यही अबू जहल है, यही नबी को गाली देता, यही मक्का का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, यही मक्का का सबसे बड़ा आतंकवादी है, यही मक्का का अल्लाह अकबर जो अमर को खत्म करना चाहता है, जो नबी के दीन को खत्म करना चाहता है, जो हमारा कुरान का दुश्मन है, जो हमारे नबी का दुश्मन है। अल्लाह अल्लाह, एक भाई ने तलवार चलाई, नीचे गिरा दिया, दूसरा भाई सीने से सवार हो गया और उसकी गर्दन को उड़ा दिया। अल्लाह अल्लाह, काफिरों ने देखा तो दो छोटे छोटे बच्चों ने इतने बड़े लीडर को मार दिया है, इतना बड़ा लीडर जो सैयदुल वादी कहलाता था, जो अल्लाह अल्लाह मक्का का सरदार कहलाता था, लेकिन अल्लाह ने इंतजाम कैसा किया है। उसको मारने वाला 11 साल की उम्र का है, 13 साल की उम्र का है। उसकी वजह यह थी, आमिना के लाल ने अबू जहल के खिलाफ दुआ की थी, और आमिना का लाल जो कहते, आमिना के लाल की जबान से जो कलिमात निकल जाए वो कभी रद्द नहीं होते हैं। अल्लाह अल्लाह, काफिरों ने देखा तो छोटे छोटे बच्चों ने अल्लाह अल्लाह हमारे लीडर को शहीद कर दिया, हमारे लीडर को कत्ल कर दिया है, वासिल जहन्नम कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, काफिरों की जमात आ गई, उन बच्चों पे वार कर दिया, किसी का हाथ कट गया, किसी का कान कट गया, किसी का सीना निकल गया, किसी की गर्दन तन से जुदा हो गई। अल्लाह अल्लाह, उनके जिस्मों को काट दिया गया। लेकिन बदर के मैदान में उन दो बच्चों का खून पुकार पुकार कर, खून के कतरात पुकार पुकार कर आज भी ये कह रहे हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया, नबी के दीन के खातिर अगर तुम्हें औलाद देनी पड़े तो दे देना, माल देना पड़े तो दे देना, हुकूमत देनी पड़े तो दे देना, और जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान न देना। तुम्हें जाना तुम्हें माना, लड़का खैर सिखाओ, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जब जिंदाबाद। इतने जुल्म होने लगे बहुत उम्दा। और आमिना का लाल जब मायूस हुआ, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया। मैं अपने मुद्दे से भटका नहीं हूं, वही बता रहा हूं, बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। जब आमिना के लाल को लोगों ने परेशान करना शुरू करा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करने लगे, या अल्लाह, मैं दिनों रात इनको समझाता हूँ, सिखा रहा हूँ, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। तब अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर में जलवा फरमाए। इधर तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत जिब्रील अमीन गेट से नहीं आए, कुंडी नहीं खटखटाई, आसमान से छत फटी तब तशरीफ लाए। इसलिए गेट खुलने में, कुंडी खटखटाने में कभी नबी के आराम में खलल वाक़ न हो जाए। सुभान अल्लाह, मचल के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आए, देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह के रसूल रातों को जागते थे या सोते थे? जागते थे। बोलो बोलो भाई बोलो। कुरान ने बयान किया, खुमिल लैला इल्ला खलीला, ए महबूब थोड़ा बहुत सो भी लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब थोड़ा सो भी लिया करो, क्योंकि मुस्तफ़ा के पैरों पे वरम आ जाया करता था रात को जागते जागते और खड़े होते होते। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज देखो क्या मामला है, आमीना का लाल रोज जागता है और आज सो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ नहीं रहे क्या आप? समझ में नहीं आ रहा है क्या? इशारा समझिए, पॉइंट को नोट कीजिएगा। अल्लाह अकबर। हर रात जागते हैं लेकिन आज सोएंगे, क्यों? अल्लाह के रसूल को मालूम है आज अल्लाह से मुलाकात करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हबीब को हबीब के पास जाना है। हज़रत जिब्रील अमीन आए, अल्लाह के रसूल आराम फरमाए। अर्ज़ किया, अल्लाह तेरा हबीब तो सो रहा है।
आराम फरमाएं। मुस्तफ़ा की आंखें बंद होती हैं लेकिन दिल बेदार होता है। बेशक बेशक, सुभान बुखारी अल्लाह, शरीफ की हदीस से पाक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्रील, उठाने का अंदाज निराला हो, नबी की शान में तौहीन हो गई तो मामला खराब हो जाता है। सुभान अल्लाह। क्या करूं रब, अपने काफूरी लबों को नबी के कदमों से टच कर दो, जैसे ही ठंडक आमीना के लाल के दिमाग में पहुंचेगी मेरा हबीब बेदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही किया जिब्रील अमीन ने। अल्लाह के रसूल बेदार हो गए। कहा जिब्रील क्या मामला? कहा अल्लाह ने बुलाया। क्या अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं है? सब मालूम है कहाँ जाना है, लेकिन आज नाज की रात है। आज अल्लाह के रसूल को अल्लाह की बारगाह में जाना है, वहां जाना है जहां कोई नहीं जा सका। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्तों की बारात भी मौजूद है हजरत जिब्रील अमीन के साथ। दूल्हा जाना है ना, दूल्हा हो तो उसके साथ में बराती भी तो होना चाहिए। आमिना का लाल दूल्हा है और अल्लाह के फरिश्तों की मुकद्दस जमात बारात है। सुभान अल्लाह। एक तश्त था जिसमें चंद चीज़ें रखी हुई थी, आब जमजम भी था। मेरे मुस्तफ़ा के सीने को चाक किया गया, सीने से नाफ तक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन जानते हैं ना, ऑपरेशन। और दिल को निकाला गया और आब जमजम से धोया गया। डॉक्टरी ये कहती है, तवज्जो चाहता हूं, डॉक्टरी ये कहती है जी रूह, यानी इंसान जिसमें रूह है, अगर किसी का इस तरीके से दिल निकाल लिया जाए बगैर सबब के तो वो जिंदा नहीं रह सकता। तवज्जो चाहता हूं, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। डॉक्टरी ये कहती है अगर किसी का दिल निकाल लिया जाए जी रूह चीज का, बगैर सबब के वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन आमीना का लाल है, दिल निकाल लो तब भी जिंदा, दिल रखो तब भी जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने हबीब को स्पेशल बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। इससे पता ये चला कोई भी रूह बगैर दिल के जिंदा नहीं रह सकता। मैं दिल का मोहताज, तुम दिल के मोहताज, हिंदुस्तान वाले दिल के मोहताज, पाकिस्तान वाले दिल के मोहताज, बलोचिस्तान वाले दिल के मोहताज, साइंसदान दिल के मोहताज, डॉक्टर दिल के मोहताज, बड़े बड़े तबीब दिल के मोहताज, बड़े बड़े हकीम दिल के मोहताज, हर पढ़ा लिखा दिल का मोहताज, प्रोफेसर भी दिल का मोहताज, चल बिचज भी दिल का मोहताज, हर खित्ते का रहने वाला दिल का मोहताज। दिल होगा तभी जान होगी, दिल होगा तभी चल सकता है, दिल होगा तभी खा सकता है, दिल होगा तभी सांस ले सकता है। लेकिन ये आमीना का लाल है, हम सब दिल के मोहताज हैं। आमीना का लाल दिल का मोहताज नहीं है। आमीना के लाल को अल्लाह ने स्पेशल बना के भेजा है। ए हबीब, सारे इंसान एक तरफ होंगे लेकिन तेरी शान जुदा होगी। ए हबीब, सारी दुनिया दिल का मोहताज होगी, तू दिल का मोहताज नहीं होगा, क्योंकि सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह ने अपने हबीब को स्पेशल बनाया है। बहुत अच्छा हुआ है, माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने हबीब को स्पेशल बनाया है। अल्लाह अकबर। अब कुरान कहता है सुभान अल्लज़ी असरा। सुभान से आयत शुरू हो रही है। सुभान का माना होता है पाक। अब सुने, जब किसी की बारात जाती है ना, दूल्हा होता है, बहनें अपने भाई को देख के कहती है सुभान अल्लाह, भाई क्या लग रहा है। खाला भांजे को देख के कहती है सुभान अल्लाह। माँ अपने शहजादे को देख के कहती है सुभान अल्लाह। हमारे इलाके में तो होता है ऐसा, जब दूल्हा कोई बनता है तो सुभान अल्लाह का विर्द सबकी जबानों पे जारी होता है। आज बारात है आमीना के लाल की। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के रसूल की माँ नहीं मौजूद जो सुभान अल्लाह कहे। पॉइंट दे रहा हूँ, पॉइंट अगर समझ में आ रही है। मैं देखूं कितना कैद करने वाले हैं यहाँ। हाँ, शुजापुर के कितने शुजा और अकली एतबार से कितने शुजा हैं, वो मैं आपका इम्तिहान लेना चाह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की कोई सगी बहन नहीं जो सुभान अल्लाह कहे। उस वक्त न आपकी खाला है न फूफी है, कौन सुभान अल्लाह कहेगा। आमीना का लाल आज दूल्हा बना है। अल्लाह ने फरमाया हबीब परेशान न होना,
मायूस ना होना, बहन ना हो तो कोई बात नहीं, माँ ना हो तो कोई बात नहीं, खाला ना हो तो कोई बात नहीं, फूफी ना हो तो कोई बात नहीं, हबीब दूल्हा के बोल सुभान अल्लाह मैं कहूँगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभाना से आयत शुरू हुई, ये यही बता रही है अल्लाह ने अपने हबीब के दूल्हा बनने पर सुभान अल्लाह कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कल्ला कहोगे अल्लाह तुम्हारी दिल और जबान को पाक फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। बिअब्दिही किसे ले गई? अपने बंदे को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे नाम, यहाँ कुरान में भी नबी जी भी हो सकता था कि अपने नबी को ले गई, भी रसूली ही भी हो सकता था कि अपने रसूल को ले गया है, भी हबीबी ही भी हो सकता था कि अपने हबीब को मेराज करवाई, मुजम्मिल भी हो सकता था, मुदस्सिर भी हो सकता था, यासीन भी हो सकता था, तवासीन भी हो सकता था, या अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद भी हो सकता था कि अपने नबी मोहम्मद को करवाई सैर। लेकिन नहीं, क्या कहा? ना नबी कहा, तवज्जो चाहता हूँ, पॉइंट दे रहा हूँ, ना रसूल कहा, ना हबीब कहा, ना मुदस्सिर कहा, ना मुजम्मिल कहा, ना तौसीन कहा, ना यासीन कहा। क्यों? दो नाम होते हैं हर एक के, एक बाहर वाला नाम होता है, हमें बाहर मुफ्ती साहब, सैयद साहब, कारी साहब, आलिम साहब, फुला साहब, फुला साहब सिफतों से पुकारा जाता है। लेकिन घर में जब माँ पुकारती है तो वही बचपनी नाम से, वही या तो अपने बच्चे को वो कभी मुफ्ती नहीं कहती, घर वाला नाम, मोहब्बत वाला नाम अलग होता है। आज अल्लाह अपने हबीब को अपने यहाँ बुला रहा है। सुभान अल्लाह। ए हबीब मक्का में जाएगा तो नबी कहूंगा, मदीना में जाएगा तो रसूल कहूंगा, सुभान अल्लाह। अगर सफा मरवा पे जाएगा तो हबीब कहूंगा, जहां जाएगा वहां हबीब कहूंगा। लेकिन आज तू मुझसे मिलने आ रहा है, औरों के पास जाएगा तो वो क्वालिटी अलग है, वो सिफातें अलग है, लेकिन मेरी बारगाह में आ रहा है तो मेरी बारगाह का नाम अलग है। हबीब नहीं कहूंगा, रसूल नहीं कहूंगा, करीम नहीं कहूंगा, मुदस्सिर नहीं कहूंगा, मुजम्मिल नहीं कहूंगा। ए हबीब ये नाम औरों के लिए है, मुझे तो आपको पसंद है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये प्यार वाला नाम है, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत वाला नाम है, ये अपनायत वाला नाम है, ये लगन वाला नाम है, ये ताल्लुक वाला नाम है। अल्लाह अकबर। दूसरी वजह ये अब्दी ही कहने का, अब्दी ही कह दिया ना, उसका बंदा अल्लाह का बंदा, ये थोड़ी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह, ये थोड़ी बड़ी बात है। मेरा बंदा है, ये लोगों आम मत समझना, मामूली मत समझना, ये कौन है? ये मेरा खास बंदा है। सुभान अल्लाह। जैसे घर कितने हैं, इमारतें कितनी बनी हुई है शुजापुर में या जहांगीरपुर में, लेकिन जो मकाम मस्जिद का है वो और इमारतों का नहीं, जो मकाम मस्जिद का है वो और घरों का नहीं। क्यों? मस्जिद को निस्बत हो गई अल्लाह से, जी जी बेशक, वो अल्लाह का घर हो गया। ऐसे ही बंदे बहुत हैं, लेकिन आमिना के लाल को निस्बत है अल्लाह से, तो सारे बंदों के मर्तबे अलग और आमिना के लाल का मर्तबा अलग है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और एक वजह ये भी है, भी अब्दी इसलिए कहा, कुछ लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया, कुछ यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। जब उनमें कमाल देखे तो अल्लाह ने यहाँ पर हबीब नहीं कहा, नबी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा। इधर तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो, पॉइंट बता रहा हूँ। अल्लाह ने अपने हबीब को रसूल नहीं कहा, नबी नहीं कहा और सिफत नहीं की, क्या कहा? अब्दी ही कहा। इसलिए कहा, इन लोगों जब मेरा हबीब सातों आसमानों को पार करके जब जन्नत को देख कर आएगा, जहन्नम को मुलाजा करके आएगा, बैतुल मक़दिस में नमाज भी पढ़ा के आएगा, अर्श को पार करेगा, सितरा को पार करेगा, जब लामका आएगा तो कोई ये ना समझ ले कि ये अल्लाह का फरिश्ता है, कोई ये ना समझ ले कि ये अल्लाह का बेटा है, कोई ये ना समझ ले ये अल्लाह का शरीक है। ए लोगों सुनो सुनो, अब्दी ही ये बता रहा है, मेरा हबीब आया तो जरूर है लेकिन अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, लेकिन ये भी सुन ले, जो वहां तक चला जाए वो खुदा से जुदा भी नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह खुदा से जुदा नहीं है, बशर है मुस्तफा हम तक पहुंचाने के लिए, नूर है अल्लाह से लेने के लिए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नूर है अल्लाह से लेने के लिए। सुभान अल्लज़ी यसरा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। सफर नहीं कहा, सफर का माना सफर करना होता है, ट्रैवल करना। यहाँ पर असरा है, असरा कुरान की आयत है। कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है, अगर कुरान को गौर से पढ़ो तो कुरान के असरार और नमूज से दिल बाग बाग हो जाता है। असरा है यहाँ पर, असरा। आप सोच रहे होंगे अभी तो पहली आयत की तशरीह चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगा मामला, बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। हाँ, असरा कहा, असरा, सफर नहीं कहा, सैर का जिक्र है, सैर। इसलिए क्यों? सफर में, ट्रैवल में थकन होती है, थकन होती है, इंसान थक जाता है, जिस्मी एतबार से भी और जहनी एतबार। अगर कोई फ्लाइट से सफर करे, सफर है, सफर का सकर, इंसान थक जाता है बहुत बुरा। सफर की मुसीबतें बड़ी खतरनाक होती है, या असरा है। लेकिन अगर कोई सैर करने के लिए जाएगा, हम तफरी करने के लिए गए थे, तो क्या मतलब वो थका नहीं है, वो किस लिए जा रहा है? वो तो थकन को दूर करने के लिए जा रहा है। जब कोई सैर करने के लिए जाता है, कोई तफरी करने के लिए जाता है, तो वो थकन को दूर करने के लिए जाता है। अल्लाह अल्लाह, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की और ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, अबू जहल नहीं मान रहा है, अबू लहब नहीं मान रहा है, उतबा शैबा नहीं मान रहा है, मेरे मुस्तफा समझा रहे हैं, रातों दिन तबलीग कर रहे हैं, सब रोज समझा रहे हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे मुस्तफा अल्लाह पर हिम्मत हार रहे हैं, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थकन महसूस हो रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है। तो अल्लाह ने अपने हबीब को सैर कराई। ए हबीब, जब मैं तुझे सैर कराऊंगा, जब मैं तुझे तफरी कराऊंगा, जब मैं तुझे लामका बुलाऊंगा, तो सुनने तेरी थकावट दूर हो जाएगी, सारी तेरी ताकत दूर हो जाएगी। ए हबीब, तो तुझे कोई माने ना माने, अबू जहल ना माने तो मत मान, अबू लहब ना माने तो मत मान, उतबा ना माने तो मत मान, शैबा ना माने तो तू ना मत मान। ए मेरे हबीब, तू मेरी बारगाह में आज जा, मेरे जलवों का दीदार करेगा, अल्लाह को तेरी सारी थकावटें दूर हो जाएंगी, तेरी सारी कुल्फतें दूर हो जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इसीलिए अपने हबीब को सैर कराई, सैर। सुभान अल्लज़ी असरा का जिक्र है, सैर कराई। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत जिब्रील अमीन दिल को निकाल के धोया गया आब जमजम शरीफ से। सुभान अल्लाह, आब जमजम शरीफ से धोया गया। वो ये ना समझ ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे जा नहीं सकते थे, जिब्रील अमीन की जरूरत है ना, ऐसा नहीं है। मुस्तफा जिब्रील के मोहताज नहीं है, हरगिज नहीं। आप फरमाते एक बुराक लाया गया, बुराक एक सवारी है, अल्लाह अकबर, और उसकी रफ्तार का ये आलम है, बर्क रफ्तार से चलती है, तहद्दे नजर, जहां तक निगाह पहुंचती है उसका एक कदम होता है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई ये ना सोचे कि अल्लाह के रसूल बुराक के मोहताज नहीं। बुराक की वजह से मुस्तफा अफजल नहीं, मुस्तफा की वजह से बुराक का जिक्र आज हो रहा है। सुभान अल्लाह, बेश है। ऐसा नहीं है कि बुराक की वजह से आमीना के लाल का जिक्र हो रहा है, बल्कि आमीना के लाल की वजह से बुराक का जिक्र हो रहा है। बेश है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस पहुंचे, मुसलमानों का पहला किबला, वहाँ सारे अंबिया मौजूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज पढ़ाई, इमामत फरमाई और सैर करी, आगे गए। अल्लाह, जन्नत को देखा, जहन्नम को मुलाजा किया, और ये भी देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज अदा फरमा रहे हैं। आसमानी दुनिया पे पहुंचे, पहले आसमान पे पहुंचे ना, अल्लाह अकबर कबीरा का दरवाजा खोलो तो आसमान पे जो फरिश्ता मुकर्रर था, एक पॉइंट यहाँ पे देना चाहता हूँ आपको, का कौन का जिब्रील का तुम्हारे साथ में कोई नौजवान है? चल के बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, क्या जिब्रील पहले नहीं जाते थे आसमान पे? अरे जाते थे भाई, तारुजुल मलाइकत व रूह, फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन जाते थे आसमानों पे, लेकिन आज जाने का अंदाज निराला। जिब्रील कभी भी जाए, कोई फरिश्ता कभी भी जाए,
आसमान का गेट बंद नहीं, लेकिन आज जहां से जा रहे हैं वहां गेट बंद है, सुभान अल्लाह, दरवाजा बंद है। फरिश्ते ने कहा तुम्हारे साथ कोई है? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। दरवाजा खोल